أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں غافل نہ کریں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ خسارے میں رہنے والا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ اور خرچ کرو جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتی احدکم الموت کہ کسی کی موت کا وقت آ جائے فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب اور وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دی فاصدق واکن من الصالحین کہ میں پھر صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے واللہ خبیر تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا واللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سچ فرمایا محترم حضرات آپ لوگوں کے سامنے سورہ منافقین کی آخری آیتیں آخری رکوع جس میں صرف 4 آیتیں 9 10 11 تین آیتیں آپ لوگوں سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا سورہ منافقون میں اس رکوع کے اندر جو ہے ایمان والوں کو اس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ زندگی کا جو کچھ مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے جب انسان کو زمین میں خلافت دی تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ زمین میں کسی کو اگر آزادی دیں گے خلافت دیں گے اس کو عمل کرنے کی آزادی ملے گی تو وہ زمین میں فساد پھیلائے گا اور ریزیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ میں وہ جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے اور انسان کو آدم کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے علم سے سرفراز کیا اور وہی اسی علم کا سرچشمہ یہ قرآن ہے قرآن کی ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی کا جو مقصد جو ہے کہ انسان کو زندگی جو ملی ہے وہ اس کے لیے جو امتحان کی زندگی ہے اور اس امتحان میں وہ اسی وقت کامیاب ہوگا جب قرآن کی دی ہوئی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارے گا تو یہ زندگی کا جو مقصد جو ہے ایک انسان کی امتحان ہے اس کی آزمائش ہے تو اس امتحان اور آزمائش میں
जब बंदा जो है अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते, कुरान के बताए हुए रास्ते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करके कामयाब हो सकता है। तो यहाँ जो चीज इंसान बताई जा रही है कि ईमान वालों से ये कहा गया है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि मेरी उम्मत पर फितना जो है माल होगा। तो ये माल जो है, आज हम देखते हैं कि दुनिया में इंसान जो है हर मजहब का मानने वाला, जिस तरीके से वो उसको सो करके उठने से लेकर रात के वापस सोने तक सिर्फ और सिर्फ माल कमाने की और माल हासिल करने की फिक्र लगी हुई है, उसी फिक्र में वो अपनी सारी और जिम्मेदारियों को, अपने और फराइज को उससे गफलत बरत रहा है। तो ये जो है ईमान वाले के लिए, ये उसके अमल जो है उसके लिए खसारे का अमल है। यहाँ पर इसी बात की तरफ ईमान वालों को मुतवज्जे किया जा रहा है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद जो है तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करे। इंसान इन्हीं चीजों में गुम होता है, इन्हीं चीजों में जब मगन होता है तो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है। और भी कुरान की मुख्तलिफ सूरतों में, सूरह अनफाल में भी आयत ऐसे ही तकरीबन के वालमु अन्नमा अमवालुकुम वला औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में तुम्हारा सामान आजमाइश है और अल्लाह के पास अजर देने के लिए बहुत कुछ है। इसी तरीके से सूरह तगाबुन में भी अल्लाह तआला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि मोमिन ये जो माल और औलाद जो है ये फितना है, आजमाइश है, ये सामान आजमाइश है। इसी में आदमी मगन होकर के, इसी में जब उसको पूरा के पूरा अपने ख्याल को डाल देता है तो वो जो अपनी जिम्मेदारियों से, उसको जो जिम्मेदारी देकर इस दुनिया में भेजा गया, जिस आजमाइश के लिए उसको भेजा गया, उस आजमाइश से वो गाफिल हो जाता है। अल्लाह के जिक्र से गाफिल होना, इसका मतलब यही है कि अल्लाह उसे याद नहीं रहता कि अल्लाह ने उसे क्या क्या हुक्म दिया है, क्या चीज उसको करना है और किस चीज से रोका गया है, तो उससे वो गफलत बरतता है। एक ईमान वाले को मुख्तलिफ जगह पर कुरान में ये रहनुमाई की गई है कि उसकी जिंदगी का मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक उसको जिंदगी गुजारना है अल्लाह, और इसी आजमाइश से गुजर करके वो कामयाब होगा। तो ये जिंदगी जो है, दुनिया की जिंदगी जो है वो धोखे का सामान है उसके लिए। तो उसमें इसी तरफ रहनुमाई की गई इस आयत में कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको इस अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से गाफिल ना करें, यानी अल्लाह के अहकामात से तुम गफलत ना बरतो। अगर तुम ऐसा करोगे, वमन यफअल ज़ालिका, अगर तुम ऐसा करोगे फौलाइका हुमुल खासिरून, और जो लोग भी ऐसा करेंगे तो वो खसारे में रहने वाले हैं। तो ये जो बात खासतौर पर माल और औलाद का जिक्र तो इसलिए किया गया है कि ज्यादातर इन्हीं चीजों में आदमी गाफिल होता है, वरना और भी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान जो है गफलत का शिकार होता है, अल्लाह से के जिक्र से, अल्लाह से गाफिल होता है, नमाजों का और दूसरी चीजों का इत्मीनान नहीं कर पाता। तो ये जो है, इससे कुरान जो है और ये आयतें उसको, इंसान को उसी चीज से रोक रही हैं कि ईमान वालों को इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि हर हालात में, हर किस्म के हालात में उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह के आमतौर से होता ऐसा है कि माल की मोहब्बत में या औलाद की मोहब्बत में इंसान जो है अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है, और इसी चीज की तरफ इन आयात में रहनुमाई की गई। फिर उसके बाद ये बता दिया गया कि वान फिर मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुम आदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। तो माल जो है वो अल्लाह की देन है, अल्लाह का दिया हुआ है। यहाँ ये बात भी बताई जा रही है कि अगर माल अल्लाह तबारक तआला ने दिया है तो जहां माल की सिर्फ और सिर्फ माल कमाने की फिक्र से रोका गया है, वहां इस बात की तरफ भी मुतवज्जे किया गया कि अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो वो माल जो है उसको अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह के बंदों पर खर्च करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये
कुरान इसकी रहनुमाई करता है कि अल्लाह के बंदों पर अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए, अकामत दीन के लिए, अल्लाह के दीन के कायम करने के लिए अल्लाह की राह में माल को सर्व करना है, माल को खर्च करना है। जब आदमी इन चीजों में, जो वहां पहली आयत में जो बात थी कि गाफिल जो कर देता है माल और औलाद से, तो वो जब गाफिल होता है तो वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता। तो उसी तरफ रहनुमाई की जा रही है कि जब तक तुम अल्लाह की राह में, अगर माल तुम्हारे दरमियान में तुम्हारे पास आया, अल्लाह का दिया हुआ माल तुम्हारे पास है, तो उसको अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, वरना उसके बाद ये बात बताई गई कि किसी के मरने का वक्त आ जाए, उसको मौत आ जाए, और फिर उसके बाद उसको इस बात का एहसास हो और वो सोचे कि काश मैंने खर्च किया होता, तो वो ये फिर अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त करे या ये सोचे कि अल्लाह ताला मुझे अगर थोड़ी सी और मोहलत दे तो मैं सदका देता और फिर अल्लाह की राह में खर्च करता और सारे लोगों में शामिल होता। तो ये जो जिंदगी का जो मकसद कुरान ने बताया है, बहुत सारी आयतों में जिंदगी का मकसद बताया है कि इंसान को जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना है और उसको इस बात की फिक्र करनी है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून नाफिज हो, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी, और वही कानून जो है इंसानों को जो है अदल और इंसाफ देने वाला है। जब तक जमीन पर अल्लाह का कानून नाफिज नहीं होगा, जब तक इंसानों के दरमियान अदल नहीं होगा, इंसानों के ऊपर जुल्म होगा, तो ये सारा जो इस दुनिया में हम देख रहे हैं जुल्म है, सारा जो लोगों के साथ में नाइंसाफी है, उस जुल्म और नाइंसाफी को खत्म करने के लिए जरूरत इस बात की है कि अल्लाह का दीन इस जमीन पर कायम हो, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का दीन कायम हो, और उसके लिए अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए जो माल अल्लाह ने दिया है, तो हमारा सारा माल जो है या माल का ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है उसको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए उसकी राह में सदका देते रहे, उसकी राह में उसके जरूरतमंद बंदों पर खर्च करते रहे। ये इस बात की जरूरत की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है। तो जब इंसान जो है इसकी तरफ तवज्जे करेगा या एक मोमिन बंदा उसकी तरफ तवज्जे करेगा कि अपने पास जो कुछ माल है उससे उसको सिर्फ अपने माल को दुनिया की जिंदगी बनाने में या दुनिया के ऐश व आराम कर या सारी चीजें या ऐश व आराम के लिए वो खर्च करता रहेगा और अल्लाह के दीन की फिक्र नहीं करेगा। अल्लाह का दीन अगर मगलूब है और उसको उसकी कुड़न नहीं है, वो इस बात की फिक्र नहीं करता कि अल्लाह का दीन अल्लाह की जमीन पर कायम होना चाहिए, तो फिर वो उसकी जिंदगी जो है नाकाम हो जाएगी। तो इसी तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है कि तुम अभी जबकि तुम्हारे पास अल्लाह का रिस्क है, जबकि पास तुम्हारे पास अभी अल्लाह की दी हुई सेहत है, जब अभी तुम्हारे पास सब कुछ है, तो इन हालात में अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, वरना फिर एक मौका ऐसा आएगा। आज हम देख रहे हैं, आज हम अपने शहर में भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंसान आनंद फानंद हमारे दरमियान से रुखसत हो जा रहा है, अल्लाह की जवाब रहमत में चला जा रहा है, अल्लाह की बारगाह में चला जा रहा है। तो किसी को अल्लाह तबारक तआला ने एक मौका ऐसा, यानी आज हमारे दरमियान में जो ये कोविड और ये बीमारी जो हमारे दरमियान में आई है, तो ये भी हमें ये बात बता रही है कि इंसान को कब मौत आ जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं। पहले ऐसे हालात थे कि इंसान कोई बड़ी बीमारी में गिरफ्तार होता था, जैसे कैंसर है, तो फिर लोग फिक्रमंद होते थे कि अब इस फला शख्स को कैंसर हो गया है और उसकी वजह से मुमकिन है कि वो उसको मौत आ जाए, जल्दी मौत आ जाए, या फिर उसके बाद दिल की कुछ बीमारियां आने लगी। लेकिन आज के जो हालात है, ये जो कोविड की बीमारी है, तो इसमें तो अगर किसी को सिर्फ सर्दी और बुखार आ गया तो भी आदमी आज फिक्रमंद हो जाए। तो अल्लाह तबारक तआला मौत के बाद की याद के मरने के बाद क्या होगा उसकी फिक्र करने की जरूरत है। हम इन हालात में भी हमारे दरमियान में बहुत सारे लोग, हमारे हम बिरादरान वतन को देखें, खुद हमारे दरमियान में लोग ऐसे हैं कि जो मौत से खौफ तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात का खौफ उनके दिलों में नहीं पैदा हो रहा है कि मरने के बाद होगा क्या। अल्लाह तबारक तआला ने जो ये जिंदगी दी है, जो एक आजमाइश के लिए दी है, तो इस आजमाइश के जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो जब होगा क्या उसकी फिक्र नहीं हो रही है। तो वो कभी भी किसी को भी मौत आ रही है। आज हम इन हालात में देख रहे हैं, हमारे अपने शहर में भी हम देख रहे हैं कि कैसे लोग
जो सेहतमंद है, चलते फिरते आदमी जो है अल्लाह की जवार रहमत में चला जा रहा है, अल्लाह की बारगाह में चला जा रहा है, यहाँ से रुखसत हो जा रहा है, तो हमको भी फिक्र करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी जब मरने का वक्त आए तो हम उस वक्त सोचे कि काश मैं ऐसा कर लिया होता, काश ये नेक काम कर लिया होता, काश वो नेक काम कर लिया होता, काश अल्लाह के दीन के कयाम के लिए कुछ कोशिश कर लिया होता। तो ये पछताने से बेहतर होगा कि अभी जो है जब अल्लाह ताला ने मोहलत दी है, माल दिया है, और जो कुछ भी हमारे पास है उसका हम अल्लाह की राह में उसको लगाते हैं, अपना वक्त है, माल है, सारी चीजें अल्लाह की राह में लगाते हैं। और ये फिर आखिरी में वही बात बताई गई आखिरी आयत में कि वनहीं युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। हालांकि जब किसी की मोहलत अमल पूरी होने का वक्त आ जाता है तो अल्लाह ताला किसी को मौका नहीं देता, और अल्लाह ताला जो है जो कुछ हम कर रहे हैं हर चीज से बाखबर है, हर चीज को जानता है। आज हम दुनिया में लोगों के हालात को जानने के लिए हम सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से लोगों को पकड़ने की कोई, उसका हमारे दिलों में खौफ पैदा हो रहा है कि सीसीटीवी कैमरे की जद में न आ जाए जो गलत काम करने वाले लोग हैं। लेकिन उस बात का खौफ इंसानों को नहीं पैदा हो रहा है कि अल्लाह तबारक ताला की निगरानी जो है मुख्तलिफ हमेशा इंसानों की, हर इंसान की रात और दिन, चाहे अंधेरी रात हो चाहे अंधेरे पहाड़ पर इंसान जो है कहीं भी तन्हाई के अंदर जाकर के कोई गुनाह अगर करता है तो अल्लाह ताला को उस चीज की खबर है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब चीजों का इल्म अल्लाह तबारक ताला को है, और अल्लाह ताला हर एक का हिसाब लेगा। इस बात से अगर हमारे दिल में ये एहसास पैदा हो जाए तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो अल्लाह ताला के इल्म में है, अल्लाह ताला को खबर है। अल्लाह ताला ने वैसे भी हमारे हालात रिकॉर्ड किए। पहले जमाने में हम शायद इसका एहसास नहीं कर सकते थे कि इतना सारा रिकॉर्ड कैसे तैयार होगा, लेकिन आज हम खुद एक मोबाइल में, एक चिप में, छोटे मोटे चिप के अंदर, एक मोबाइल के अंदर हम बहुत सारी चीजों को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। हम न सिर्फ लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं बल्कि उनके अमल भी जो है पूरा, जिसको वीडियोग्राफी टाइप हम उसको पूरा रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। तो जब इंसान इतनी सारी चीजें कर सकता है तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने इंसानों को पैदा किया, हमको पैदा किया, हमारे से पहले लोगों को पैदा किया और पूरी कायनात का मालिक है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता, कितना रिकॉर्ड नहीं जमा कर सकता, उसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर वही बात की है कि जब किसी की मौत का वक्त आ जाए तो उसकी मौत को अल्लाह ताला किसी को भी मजीद मोहलत नहीं देगा, और अल्लाह ताला अभी हम जो कुछ कर रहे हैं उन सब चीजों से बाखबर है। तो 3 आयत के अंदर जो कुछ तालीम दी गई, 3 आयत के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने ये बताया कि हमको जिंदगी के मकसद को अपने सामने रखना है, उस मकसद के मुताबिक हमको जिंदगी गुजारना है। ये बात हमको बता दी गई, हमारे इल्म ला दी गई कि माल और औलाद हमारे लिए फितना है। कुरान की मुख्तलिफ आयतों का जो सूरह अनफाल की, सूरह तगाबुन की आयत मैंने आपके सामने बताई, तो इसमें अल्लाह तबारक ताला ने उससे हमको बाखबर किया है कि ये हमारे लिए फितना है, उसी में गिरफ्तार होकर के हम अपनी नाकामी का सबब बनेंगे। कुरान में और भी एक जगह जो सूरह तकासुर में ये बताया गया कि अल्हाकुमुत-तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि ये लहू जो है यहाँ भी तुल्हिकुम है, वहाँ भी लहू है कि जब इंसान वो किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के फिक्र में पड़ जाता है माल को, तो फिर वो इतना गाफिल होता है, इतना गाफिल होता है यहाँ तक कि वो कब्र में पहुंच जाता है। तो अल्लाह ताला हमें उस सूरत हाल में पहुंचने से पहले ये जो हमको तालीम दी जा रही है, हमको हिदायत दी जा रही है कि हम माल और औलाद का वही इस्तेमाल करें जो अल्लाह तबारक ताला ने दिया है, कि माल का इस्तेमाल अल्लाह की राह में करें और औलाद को जो है अल्लाह की राह में ऐसे उनकी तरबियत करें उनकी, कि वो भी अल्लाह की राह में जो है तो अल्लाह के दीन को कायम करने वाले, अल्लाह के जमीन पर अल्लाह के निज़ाम को कायम करने की कोशिश करने वाले बने। यही इस इंसान को यहाँ पर ईमान वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात के लिए मुस्तकिल कोशिश करता है, हमेशा उसके लिए फिक्रमंद रहे कि अल्लाह का दीन कैसे कहीं जमीन पर, अल्लाह की जमीन पर नाफिज होगा, कैसे गालिब होगा, कैसे कि अल्लाह तबारक तआला के अहकामात नाफिज होंगे, जिसके जरिए से जमीन पर अमन आएगा, सुकून आएगा, लोगों के साथ अदल होगा और लोगों को
जो है उनके हुकूक बराबर मिलेंगे, उसके कायम किए बगैर जो है अल्लाह की ज़मीन पर ये नाइंसाफ़ी और जो कुछ जुल्म है वो ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी हम तमाम लोगों को इन आयत को मज़ीद पढ़ने की, इसके मुताबिक ये जो फितने से जो रोका गया उस फितने से रुकने की, अल्लाह की याद अपने दिल में बसाने की, और अल्लाह ताला ने जो कुछ माल और औलाद हमको दिया है उसको अल्लाह की राह में खर्च करने की, उसको लगाने की और इस दीन को कायम करने की, जब तक कि हमको सेहत है उसी वक्त कोशिश करने की तौफीक नसीब फरमाए, अता फरमाए। ऐसा ना हो कि हम भी जब मौत हमारे करीब आ जाए, जब हमारे हम बिस्तर मर्ग पर हों और उस वक्त कुछ अफसोस करें कि अल्लाह ताला मुझे थोड़ा मौका और देता तो मैं ये कर लेता, मैं वो काम कर लेता, अल्लाह को राजी कर लेता। ऐसा कोई मौका हमारे पास ना आए, हम उससे पहले अपनी मौत से पहले मौत की तैयारी करें और अल्लाह के दीन को कायम करने की उसकी कोशिश करें। लेकिन अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के हाल से वाकिफ है। अल्लाह ताला मुझे भी हम तमाम लोगों का मन से तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। हाज़रीन किराम, इंसान खैर और शर का मुजस्सम है। इंसानी फितरत खैर पसंद वाक़े हुई है और खैर और भलाई के कामों में उसे खुशी और मसरत होती है और रूह में ताजगी और राहत महसूस होती है। मगर इसके साथ दूसरी चीज नफ्स अम्मारा है जो बुराई की तरफ उकसाते रहती है। हर इंसान के अंदर ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वनफ्सि वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। और वही खुदा ताला है जिसने नफ्स को ठीक ठाक किया और संवारा और उसमें उसका फुजूर और उसका तक़वा दोनों इल्हाम कर दिया है। ये दोनों हालतें आदमी पर गलबा पाने के लिए कोशिश करती रहती है। इन दोनों में तसादुम होता है, क्योंकि बुराई में नफ्स को लज्जत महसूस होती है, इसलिए आदमी उसके फरेब में मुब्तला होकर बुराई में कोई अख्तियार कर लेता है और ख्वाहिशात नफ्स उस पर गालिब आ जाती है। जबकि खैर के कामों में आसानी से आदमी का नफ्स आमादा नहीं होता, बहुत शाह गुजरता है, नफ्स पर बड़ा गिरा गुजरता है कि भलाई के काम अंजाम दे। कुरान पाक ने इंसान की इस कैफियत पर इजहार ख्याल करते हुए इरशाद फरमाया, फलक़तहमल आक़बा, उसने घाटी अबूर नहीं की। यानी अच्छे अखलाक और खैर की बातें ऐसी हैं कि इन पर अमल करना गोया पहाड़ी पर चढ़ने के बराबर है। फिर उसकी वजाहत करते हुए ये बात भी इरशाद फरमाई कि फक्क रक़बा और इतामुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा और मिस्कीनन ज़ा मतरबा। ये घाटी अबूर करना क्या है तुम जानते हो? ये किसी गुलामी में पड़े हुए इंसान की गर्दन छुड़ाना, यानी गुलामी से आजाद करना है। दूसरी बात यह है कि उन दिनों में जबकि फाका मस्ती के दिन क़राबतदार यतीम को और खाक आलूद मिस्कीन को खाना खिलाया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اچھے اخلاق کو اپنی بعثت سے تعبیر فرمایا. ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے کہ سارے اخلاق کی میں تکمیل کر دوں. یعنی زبان سے بھی وہ اخلاق واضح ہو جائے اور عمل سے بھی انسانوں کے سامنے اس کی چلتی پھرتی تصویر آ جائے. حسن اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے. اسلام نے حسن اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور مختلف مواقع پر اس کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے اس وقت بہت ساری نصیحتیں کی. ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ احسن خلقت للناس، تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. حسن اخلاق کا تعلق ایمان سے جڑا ہوا ہے. ارشاد نبوی ہے الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں. صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے وضاحت فرمائی الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص ایمان والا نہیں کہ جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے. یعنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ ایمان کا ایک مظاہرہ ہے اور ایمان کی علامت ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے حسن اخلاق سے متعلق وطلاقۃ الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی. حسن اخلاق کیا ہے؟ یہ بشاشت کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے دوسروں سے باتیں کرنا، سخاوت اور اپنے ہاتھ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکے رکھنا، یہ حسن اخلاق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الخلق عیال اللہ، کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ إِلَىٰ عَيَالِهِ. بس لوگوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اہل و عیال کے ساتھ یعنی اللہ کے اہل و عیال یعنی عام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ حسن اخلاق پر آپ نے نہ صرف زور دیا بلکہ آپ نے بار بار اس کی تاکید فرمائی. ایک جگہ ارشاد فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے. عہد کی اہمیت بتاتے ہوئے کہ پابندی کرو، اس لیے کہ عہد کے بارے میں کل تم سے سوال ہونے والا ہے. دوستوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ عام بات ہے کہ جن سے تعلقات ہوتے ہیں ان کے ساتھ آدمی بڑی خوش اسلوبی سے ملتا ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. مگر دشمن کے ساتھ آدمی اچھے اخلاق کا نہیں بلکہ برے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. کمال یہ ہے کہ آدمی دشمن کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے. آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دشمن دشمنی کر رہا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے اور میری غیر موجودگی میں میرے خلاف منصوبے بناتا ہے، میں کیوں خاموش رہوں؟ چنانچہ جواب میں دشمنی کے جواب میں آدمی دشمنی اختیار کرتا ہے.
مگر یہ چیز اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکی دور ہے اور مکی دور میں اہل ایمان کمزور تھے، ان پر مظالم ڈھائے جاتے، ان کو ستایا جاتا، ان کے خلاف طرح کے منصوبے بنائے جاتے تھے. ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو جو ہدایت دی گئی وہ بڑی قیمتی ہدایت تھی. چنانچہ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی. ادفع باللتی ہی احسن، تم بدی کے جواب میں نیکی کا رویہ اختیار کرو. یعنی دشمن کیسا ہی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم دشمنی کا جواب بھلائی سے دینے کی کوشش کریں. اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا ہوگا قرآن نے اس کے آگے اس کو ہی بتا دیا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کٹر سے کٹر دشمن تمہارا جگری دوست بن گیا ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے جب یہ رویہ اختیار کیا تو اس کے اثرات بھی سامنے آتے گئے کہ کس طریقے سے اہل ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا اثر دشمنوں پر پڑتا رہا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دشمنوں کے ساتھ ایسا ہی تھا. مکہ فتح ہو رہا ہے اور بڑے بڑے دشمنان دین سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اہل ایمان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے. اللہ کے نبی ذرا اشارہ کریں اور سارے دشمنوں کو آگ اور خون میں تڑپا دینے کے لیے کافی تھا. بلکہ بعض صحابہ کے جذبات مشتعل بھی تھے اور انہوں نے کہا بھی کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خونریزی کا دن ہے. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے. اور سارے دشمنوں کو آپ نے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد. اس کا اثر کیا ہوا کہ اس حسن اخلاق نے ان کے اندر زبردست انقلاب پیدا کیا اور جبر سے اور زیادتی سے نہیں بلکہ دل ایمان کی طرف مائل ہوئے اور بڑے بڑے دشمنان دین نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی کا یہ طرز عمل جو آپ نے اختیار کیا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کے زمانے تک محدود ہو، آج ایسا کیا جائے تو اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا. نہیں، بلکہ آج بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ ہمارے اس ملک کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جیل میں بہت سارے بم بلاسٹ کے مجرم داخل تھے. اس میں ایک بڑا مجرم اسیم آنند بھی تھا اور وہیں جھوٹے الزام میں کلیم احمد کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. کلیم احمد نے اسیم آنند کی خدمت کی، اچھے اخلاق سے پیش آیا، حسن سلوک کیا. اس کا اثر کیا ہوا؟ اسیم آنند کے دل میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ خود جا کر کورٹ میں بیان دیتا ہے جج کے سامنے کہ یہ لڑکا مجرم نہیں ہے، مجرم میں ہوں، میں نے بم بلاسٹ کیا ہے. چنانچہ یہ اثر ہمارے نگاہوں کے سامنے
کہ کس طریقے سے آج بھی ہمارے ملک میں بڑے بڑے دشمنان دین کو ہم زیر کر سکتے ہیں اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، یہ اس قسم کی مثالیں آج بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ شرط یہی ہے کہ ہم انسانوں کی نفع رسانی کے کام انجام دیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی کے کام انجام دے۔ مگر ہوتا یہی ہے کہ باہر تو آدمی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں باہر لوگوں سے ملتے ہیں تو بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ، مگر وہی لوگ جب گھر میں آتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ دوسرا ہوتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ اخلاق باقی نہیں رہتا۔ یہاں پر سختی ہوتی ہے، تشدد ہوتا ہے، غلط رویہ ہوتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں سب میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، انا خیرکم لأہلی، میں اپنے اہل و عیال کے لیے انتہائی بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی کا معاملہ یہی تھا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آتے تھے۔ عزیز بھائیوں، موجودہ حالات بھی ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم دعوت دین کے کام کے لیے اس ملک میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اگر حسن اخلاق سے کام لیں گے تو تعداد تھوڑی ہونے کے بعد ظالم ایک نہ ایک دن اس پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ تو ہم کو حسن اخلاق کی اس تعلیم کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے بہترین اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔